cannot be there physically, but we can try to celebrate it virtually. Okay, now what you are people are going to do, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग सबका दिल चाह रहा है, अगर क्या करना चाहते हैं आप लोग? What do you all want to do? Do you have something in your mind कि बस हम ये कर सकते हैं? Give me ideas. Virtually क्या कर सकते हैं? Okay, come on, start. कोई आइडिया है? I'll अब जो है for our class the theme will be the theme that we have selected. Yes, we can make speeches. Good, Aniza, that is a very good option. That is in my mind right now. और there are other things also. First of all मैं आपको थीम बताती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आपको किस उस पे काम करना है, किस लाइन ऑफ आपकी लाइन ऑफ वर्क क्या होगी. ओके, द थीम विल बी हाउ कैन वी मेक आवर पाकिस्तान, आवर कंट्री पाकिस्तान क्लीन एंड ग्रीन. ओके, सबसे पहले क्या करना चाहिए? वी शुड थिंक अबाउट द cleanness and the greenness of Pakistan. So our theme will be how can we make our Pakistan, our country, clean and green. Okay, so for that आप लोग क्या करेंगे? आप we have a multiple choice of activities for you. Maham, please pay attention. Stop talking to whoever you are talking to. Yes, we are going to have a virtual celebration on Saturday, 14th August Saturday, that is. But उससे पहले आप लोगों को एक आप लोगों से एक contribution चाहिए आपको, ठीक, हमको, ठीक है ना? And what that contribution is going to be? That contribution is that you can make posters, you can draw pictures, posters concerning Pakistan Day celebration, right? आप उसमें कोई भी मॉन्यूमेंट्स जो पाकिस्तान के हैं उनकी बना सकते हैं, या आपके जहन में जो फिगर्स जो हमारे पर्सनालिटीज हैं, कायदे आजम, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान, एंड देयर आर सो मेनी ऑफ देम, आप उनके पोर्ट्रेट्स जो बनाना चाहे वो अच्छे से पोर्ट्रेट बनाए, और you make a picture or a small video, a very small video holding it clearly, very clear, wearing your uniform. You can record a small song. ठीक है, एक छोटा सा कोई आपको सॉन्ग पाकिस्तान से रिलेटेड याद है, you want to sing it, ठीक है? या अगर आप you think that you can आप अशआर सुनाना चाहें, पोइट्री, जरूरी नहीं है you need to sing it, आप सिर्फ ऐसे ही अगर इलोकेशन के तौर पर अगर आप उसको सुनाना, you can sing it, you can say, record that also. A small speech, right? A speech about Pakistan or Qaid Azam or and what else? And the day of 14th August, how did we get independence? ठीक है, और ये हो गया. और उसके बाद है you can record a very short message also. ठीक है, वो किस तरह से करेंगे? Wearing a uniform in clear English, ठीक है, it should be in English and it should be, you should be wearing your uniform. अब एक बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी बैकग्राउंड अच्छा सा सेट कर ले अपना, अगर इफ यू कैन थोड़ी सी, अगर इफ यू वांट टू आप उसको इस तरह से एनहांस कर सकते हैं कि आप अपने बैकग्राउंड पे थोड़ी सी डेकोरेशंस लगा लें, पाकिस्तान का फ्लैग लगा लें, और छोटी जो उसके छोटे फ्लैग्स होते हैं वो आप उससे अपनी दीवार या व्हाटएवर जो आपका बैकग्राउंड है उसको सजा लें. बेटा मुनज़्ज़ा, it's up to you, of course it's optional, but we do expect it from you. ठीक है ना, आप लोग करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी. Okay, and it will be a message, or
what you are going to do is you can record that message, you can record that song, you can record that speech, or you can take a picture of yourself with the portrait or the poster that you have made with your name and clearly written on it, और ये आप सेंड करेंगे कहाँ पर, on my WhatsApp number. ओके मोहम्मद अहमद, अच्छा किसवान, जैद राफिया, आप लोग सब अपने कैमरास ऑन करें. अनुषा, जवाद, युमना, राफिया, अब्दुल मोइस, मोहम्मद फैन, I want all of you to keep your cameras on. Are you getting what I am talking about? हाँ, सही. आप लोगों ने आप try, all of you try to participate in it. ठीक है. What are the options? Speech, right? Number 1 is speech. Number 2 is a portrait of any national hero. जो भी आपके national hero है उनकी आप पिक्चर बना सकते हैं, आप पोर्ट्रेट बना सकते हैं, आप किसी कलर करना चाहे, स्केच बनाना चाहे, पेंसिल स्केच बनाना चाहे, do it. Okay. Number 3 is you can record a song. एक दो पोइट्री पढ़ना चाहे, you can read the poetry or you can record a song. And number 4 is you can record a short message. ठीक है, a short message. And then there is a poster बना सकते हैं जिसमें आप पाकिस्तान के बारे में जो थोड़ी बहुत information है, you want to give a brief information about Pakistan and mentioning theme क्या है, what is the theme. जी, okay Rafia, the theme will be how can we keep our Pakistan clean and green. ठीक है ना. और उसके बाद है, अच्छा, you are going to wear your uniforms. यूनिफॉर्म में होगी तो acceptable होगी, but otherwise it won't be acceptable. You can wear handbands in your head. आप अपने हाथ में handbands पहन ले. You have headbands. Yes, it should be in English. ठीक है, वो आप डेकोरेट बैजेस आपके पास हो वो लगा लें. ओके, जो भी आपको अच्छा लगे. यू वांट टू, गर्ल्स कैन डू इट जो करना चाहे, और बॉयज कैन आल्सो वेयर देयर हैंडबैंड्स. हाथ में जो हैंड्स के रिस्ट बैंड्स आते हैं वो पहन सकते हैं. और उसके अलावा एक काम और भी कर सकते हैं. यू कैन मेक पेपर क्राफ्ट्स, ग्रीन एंड व्हाइट पेपर क्राफ्ट अगर बनाना चाहे. अच्छा, ये सारी चीजें आप किस तरह करेंगे? Things that are available right there at your house, at your home. ठीक है, अपने घर से चीजें गैदर करें. Don't just run out to the market and start the shopping spree. Don't do that. Okay, पहले घर से गैदर करेंगे. Our theme is clean and green Pakistan. And what are we going to do for it? We have to recycle. हम चीजों को जाया नहीं करेंगे. We can recycle things also, right? तो ये आप बनाएं and make a video के see I have made this. ठीक है, आप वो भी आप भेज सकते हैं. And where are you going to send it? Where are you going to send it? Yes, answer. जी अर्शिजा बोले, go ahead. Miss, on your WhatsApp number. Sorry? Miss, on your WhatsApp number. Yes, on my WhatsApp number. ग्रुप पे नहीं, on my number personally, अलग. ठीक है, WhatsApp करेंगे आप. ओके, नॉट ऑन द ग्रुप पे नहीं भेजना. ओके, सही. And we'll try to select the best ones, inshallah. Rather we'll try to send all the messages. और ये messages कहाँ जाएंगे? On Facebook. ओके, ऑन सोशल, ताकि यू विल बी, आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगी और इट विल बी अ वेरी गुड इनिशिएटिव. आप मेरिटोरियस, यू बिलोंग टू मेरिटोरियस स्कूल, तो आप यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट योर स्कूल देयर. ओके, आप लोग अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे. वन ऑफ यू टू सेंड समथिंग. ठीक है, कुछ भी. महसाम,
Mesam, wake up. Is it so boring? Are you not interested? Ji, Manur. Acha, okay. Just a second, Manur. Anusha, you want to say something? Yes, beta, go ahead. Miss, I want to ask that if I'm going to make small cups, so I'll send the with my just going to take the Sorry, beta, of the cups only. your voice is disturbed. Please repeat yourself again. Teacher, teacher, what we can make more things? एक minute. Anusha, please repeat yourself. Miss, I'm asking if I'm going to make small cups, so I have to take the picture with myself, or I'm just going to take the picture of the cups only. What did you say? Cups. I can, बेटा आपके बैकग्राउंड पे आवाज है. That is why I cannot hear you clearly. Miss, I'm asking that if I'm going to make small cups, so I have to take the picture with myself or the cups only. Also there. ठीक है ना, अच्छा लगेगा ना. You are going to it should be represented कि किसने बनाया है, ठीक है ना. ओके, तो ये जरूर होना चाहिए. A very small, a very yes, you have to send it. आप एक काम करें फातिमा इब्राहिम, the message that you are going to write, instead of writing it, why don't you record it? ठीक है ना, आप उसकी recording, you can give the message verbally. ठीक है, आप उसको verbally record करके अपने मम्मा से, बाबा से, जिससे भी whatever, किसी की भी help ले ले और उसको record करके a very small. अच्छा, आपको कितनी देर का होना चाहिए? It should be for about 1 to 1.5 minutes, not a very long one, ताकि सबको पार्टिसिपेशन का मौका मिले. अगर बहुत लंबी लंबी स्पीच करेंगे तो इट विल बी बोरिंग, राइट? ठीक है ना. और द थीम विल बी, क्या थीम होगी? हाउ एंड व्हाट शुड वी डू टू कीप आवर कंट्री clean and green. Okay, so this is what we are going to do. Sahi. Number 1 is speech, a small speech, a message, a song, or an elocution, or a poster, or whatever you want to do. Okay, this is it, and it should be very clear and in English. Okay, and yes, due date. Most important is the due date. You are going to start it today. कोशिश करें कल तक मुझे आप भेज दें. Okay, tomorrow is going to be 10th of August, right? 10th. And at most it will be 11th. Just yes, Ruhan, sorry for keep you waiting. Yes, Ruhan, please बेटा बोलिए. टीचर, आपकी आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही थी, तो आप मुझे बता देंगे हम क्या क्या बना सकते हैं? Yes, I'm going to repeat again. Number 1 is that you can send a small speech, recorded speech of 1.5 minute. ठीक है. Number 1 is a small speech, a message to all your fellow पाकिस्तानी, जो हम सब पाकिस्तानी है, खास तौर पे द चिल्ड्रन, आपके जैसे जो बच्चे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? What should we do for our Pakistan to keep it clean and green and beautiful? And then you can make a portrait, a picture, or a poster, right? And then you can एक चीज और भी आप कर सकते हैं. ओके, पेपर क्राफ्ट वगैरह अगर आप कुछ ऐसा बनाना चाहें, जैसे आप डेकोरेशन बनाना चाहें विद योर ओन हैंड फॉर पाकिस्तान, तो आप वो बनाकर उसको डिस्प्ले करके उसके साथ भी अपनी पिक्चर भेज सकते हैं. ओके, डन. रूहान, गॉट इट? ओके,
So this is going to be our theme for Pakistan Day celebration. And when are you going to send it? The due date, the deadline is 11th of August. इससे ज्यादा extend नहीं हो सकती because उसको process करना sorry प्रोसेस करना, अपलोड करना, इट टेक्स टाइम. सो वी ऐसा ना हो कि हम देर कर दें. पता चला कि हम 14 अगस्त के बजाय हम बहुत लेट हो गए. लेट नहीं बनना हमने. वी हैव टू डू इट ऑन टाइम. सो उसके लिए क्या है, यू आर गोइंग टू सेंड इट ऑन टाइम. एंड व्हाट इज द ड्यू डेट? द डेडलाइन इज 11th of August. ठीक है, शाम तक, रात तक आप मुझे हर सूरत भेज देंगे. इज दैट क्लियर? टीचर हमें एलएमएस पे सेंड करना है? No, not on LMS, on my WhatsApp number, not the group. Okay, on my WhatsApp number. So coming. Miss, जी माहम बेटा बताइए, हम किसे कहते हैं? सबसे पहले तो माम ये बताइए, हम किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जो अल्लाह के बारे में लिखा गया हो, जो अल्लाह के बारे में. नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं. अच्छा, और अब आप मुझे बताइए कि हमने उस दिन जो पढ़ा था अभी लास्ट अपनी क्लास में, हम्द में हमने क्या क्या कुछ पद पढ़ा लिया था. सबसे पहले शेर में पहली लाइन में क्या बताया गया था? जी माहम. फातिमा जी, फातिमा आप बताइए बेटे. मिस फर्स्ट शेर का मतलब? जी पहले शेर का मतलब क्या है? मिस इसमें लिखा हुआ तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया. हम तारीफ उस खुदा की कर रहे जिसने ये जहां बनाया. जहां मतलब? जहां दुनिया. दुनिया, कायनात पूरे, सिर्फ हमारी दुनिया नहीं बल्कि चांद, सूरज, दूसरे सैयारे, सब कुछ. अच्छा, और Yes. उसके बाद? जी अगली लाइन में क्या बताया? कैसी जमीन बनाई, क्या आसमां बनाया, यानी कि कितनी खूबसूरत जमीन और आसमान बनाया है. और हमारे पैरों तले बिछाया, यानी कि पैरों के नीचे फर्श खाकी, जमीन कैसी है? ब्राउन कलर की, खाक मट्टी की बनी हुई कैसी जमीन है, इतनी शानदार. और सर पे लाजवर्दी, लाजवर्द, किसी को याद है लाजवर्दी का क्या मतलब है? जी वर्द असल एक कीमती पत्थर, जैसे हीरा होता है, जैसे डायमंड्स होते हैं, जैसे रूबी होते हैं, जैसे एमरल्ड होती हैं. इसी तरह से लाजवर्द एक प्रेशियस स्टोन का नाम है, एक कीमती पत्थर का नाम है. और उसका कलर क्या होता है? उसका रंग होता है नीला, ब्लू कलर. तो हमारा आसमान का रंग जो है उस प्रेशियस स्टोन, उस कीमती लाजवर्द की जैसा है. तो इसलिए हम उसको क्या, शायर ने उसको क्या कहा है? लाजवर्दी, यानी कि लाजवर्द की तरह नीला है. और मट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए. और इस जमीन में से क्या कुछ उगाया है? जी इस जमीन से अल्लाह ताला ने क्या क्या कुछ पैदा किया है, बताइए. कौन बताएगा जमीन से क्या क्या कुछ पैदा होता है? बेल, जमीन होता है.
बेल बूटे यानी कि फल फूल पौधे दरख्त, ये सब कुछ कहाँ से उगते हैं? माहम बेटा प्लीज, माहम आसिफ, माहम आसिफ। बेटा अगर आपको किसी और से आप लोगों को बात करनी है तो आप लोग प्लीज क्लास से जा सकते हैं। मुझे ये आप लोग जब इधर उधर मुतवज्जो होते हैं तो उससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है? सही? माहम आसिफ, मैं आपको क्लास से रिमूव कर रही हूँ। आपका 1 MB जाया हो गया। ओके है ना? वन MB हो गया पूरा। ओके 1 MB हो गया यूज जी। हो गया। इरम आप किससे बात कर रही हैं? प्लीज बेटा इधर ध्यान दीजिए, तवज्जो इधर दीजिए। मट्टी अभी यही देखे मैंने आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो आप लोगों को किसी को याद नहीं। वजह क्या हुई है? उसकी वजह यह हुई है कि तवज्जो ही नहीं थी, ठीक है ना? तो पढ़ने का फायदा क्या जब समझ ही ना आए तो? फिर मैं बस ये करूंगी, बस आपसे कहूंगी बस लिखे, कॉपी में आंसर लिखना शुरू करें और खत्म। फिर हम कुछ समझेंगे नहीं। हम उर्दू को कैसे सीखेंगे जब उर्दू के मायने ही नहीं समझ आएंगे हमें? टीचर मैं बताऊं? जी बताइए जुबान। जी रूहान। टीचर अल्लाह ने दरख्त उगाए, अल्लाह ने दरख्त उगाए क्या गार बनाया, और अल्लाह ने मीठे फल उगाए। बिल्कुल शाबाश। अल्लाह ताला ने इस जमीन से फल पौधे जो उगाए अल्लाह के हुक्म से उग रहे हैं, तो इन फल पौधों से हमें क्या क्या कुछ मिल रहा है? हमें साया मिलता है, हमें फल मिलता है, और इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने खुशरंग मट्टी से, इस जमीन से बेल बूटे, बहुत ही हसीन खूबसूरत बेल बूटे उगाए हैं। पहना के सब्ज किलत किसे कहते हैं? रोब, गाउन जो ऊपर से पहनते हैं ना, उसको हम कहते हैं खिलत। तो ऐसा लगता है कि ये जो हरे सब्ज पौधे हैं, फूल पौधे हैं, ऐसा लगता है इन्होंने ग्रीन कलर का कोई गाउन ऊपर से पहना हुआ है, ठीक है? खुश रंग और खुशबू गुल फूल हैं खिलाए। और गुल फूल यानी कि फूल कैसे हैं? कैसे हैं? खुश रंग है, इनके रंग बड़े हसीन हैं। और इनकी खुशबू कैसी है? उनकी खुशबू बहुत अच्छी है। इस खाक के खंडर को क्या गुलिस्तान बनाया। और जमीन जो है, अगर इसके अंदर ये फल पौधे फूल खूबसूरत ना होते तो ये कैसी लगती? ये हमें खंडर की तरह लगती। मेवे लगाए क्या क्या कुछ जायका रसीले। मेवे किसे कहते हैं? मेवे कहते हैं फलों को, ठीक है? आप लोग आमतौर पर हम लोग मेवे का मतलब ड्राई फ्रूट लेते हैं, जैसे बादाम पिस्ते वगैरह, लेकिन जो हम केले सेब अंगूर, ये भी मेवे ही होते हैं, इनको भी मेवा भी कहते हैं। इसको अरबी और फारसी जुबान में मेवे भी कहते हैं, ठीक है? मेवे लगाए क्या क्या खुश जायका। खुश जायका मतलब बड़े मजेदार, टेस्टी, ठीक है? चखने से जिन, और रसीले, रसीले मीन्स बहुत जूसी हैं। चखने से जिनके हमको शीरी दहा बनाया। और जब हम इसको खाते हैं तो हमारे मुंह का जायका कैसा हो जाता है? मीठा। माहम आसिफ, माहम आसिफ, डल माहम आसिफ बेटा, किताब आपके जरूर आगे है लेकिन आपकी तवज्जो यहाँ नहीं है। बेटा अगर आपको इससे ज्यादा कोई अहम काम है तो आप जरूर जाइए।
चखने से जिनके हमको, यानी कि जब हम ये मेवे ये फल खाते हैं तो हम इनके जायके से हमारे मुंह का जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। जी बेटा मोहम्मद अहमद। मुंह का जायका मीठा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी। सूरज की रोशनी की वजह से क्या होता है, दुनिया रोशन और अच्छी लगती है। अगर सूरज ना हो, आप सोचे तसव्वुर करें तो क्या होगा, पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। और आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि सूरज की रोशनी की वजह से पौधों को ग़िज़ा मिलती है। उनको कहाँ कैसे बनाते हैं फूड, आपने पढ़ा है ना, फोटोसिंथेसिस साइंस में पढ़ा है ना आप लोगों ने के जी। मम्मा आप की कॉल आ रही है यार। फिर उसमें क्या होता है कि इन पौधों, ये पौधे जो हैं ये अपनी ग़िज़ा जब बनाते हैं तो इनके लिए सूरज की रोशनी बहुत जरूरी होती है। अगर सूरज की रोशनी ना हो तो इनके लिए अपना खाना बनाना मुमकिन नहीं होता, और अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो पौधे मुरझा जाएंगे। तो इसका मतलब है पूरी दुनिया ही हमारी वीरान हो जाएगी। तो सूरज हमारे लिए इतना, और फिर सूरज से दूसरी बात हमको भी तवानाई मिलती है। जैसे अभी कहा ओके जी, हमें इससे विटामिन डी मिलता है। अनीजा ने जैसे बताया कि ये हम इससे हमें क्या मिलता है, विटामिन डी। विटामिन डी का मतलब क्या होता है कि इसकी वजह से हमारे जिस्म में जो है एक तो तवानाई आती है, गर्माई आती है। और अगर सूरज ना निकले, सारा वक्त सर्दी रहे, ठंडक रहे, तो हम लोग सुस्त हो जाएंगे। सर्दियों में होता है ना, सुस्ती ज्यादा लगती है, दिल चाहता है बिस्तर से ना निकलो, लेकिन सूरज की रोशनी गर्माई पहुंचने से हम लोग चुस्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, रहने को ये हमारे अच्छा मका बनाया। और हमारा जो ये मका यानी हमारा ये जो घर है, घर क्या है, हमारी जमीन, हमारी प्लैनेट अर्थ, ये हमारा घर है, ये हमारा ठिकाना है। ये कितना अच्छा बनाया है, इसमें क्या क्या चीजें अच्छी अल्लाह ताला ने बनाई हैं। ये प्यारी प्यारी चिड़ियां फिरती हैं जो चहकती, परिंदों की चहचहाहट कितनी अच्छी लगती है ना, जब वो अपनी आवाज में गा रही होती हैं तो कितनी खूबसूरत लगती है। कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वां बनाया, यानी कि अल्लाह ताला, यानी कि ये क्या कर रही होती है, जो चिड़िया चू 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 कर रही होती है, ये शोर नहीं मचा रही होती, ये दरअसल अल्लाह ताला का जिक्र कर रही होती है। ठीक है, जी। और ये क्या कर रही होती है, ये अल्लाह ताला का जिक्र कर रही होती है। आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने, यानी कि आबे रवा किसे कहते हैं, अब्दुल मुईस प्लीज तवज्जो, अब्दुल मुईस सब इस तरफ तवज्जो रहे। मैं अभी सवालात पूछ रही हूँ और मुझे पता चल जाएगा कि किसने क्या सुना और क्या समझा। ठीक है ना, अभी इसी हम से रिलेटेड सवाल पूछने वाली हूँ। आबे रवा के अंदर, आबे रवा का मतलब क्या होता है, आबे रवा बहता हुआ दरिया। आब किसे कहते हैं, पानी को, रवा का मतलब चलता हुआ यानी बहता हुआ दरिया। दरिया के अंदर क्या बनाई, मछली बनाई। दरिया में क्या तैर रही होती है, क्या होता है दरिया के अंदर, दरिया के पानी में क्या क्या नजर आता है, कौन बताएगा, रोहान सिद्दीकी आप बताइए। हम दरिया में, दरिया के किनारे खड़े हुए हों तो दरिया के अंदर हमें क्या क्या कुछ नजर आ जाता है। मेरे तो बहुत सारे पत्थर होते हैं। पत्थर तो नीचे तह में बैठे हुए होते हैं, उसके अंदर जिंदा चीजें कौन कौन सी होती है, मिस ऑक्टोपस, फिश। ऑक्टोपस, हाँ बिल्कुल। आबे रवा का मतलब यहाँ दरिया है, आप समंदर भी ले सकते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, मछली तैरती हुई नजर आती है, उसके अंदर पानी के पौधे नजर आते हैं, और उसके अंदर और क्या चीजें होती हैं हमारे पास, क्या देखते हैं, ऑक्टोपस, बड़े बड़े जेलीफिश, और बहुत ही हैरत अंगेज चीजें होती हैं। और ये सब किसने बनाया है, ये हमारे अल्लाह ताला ने बनाया है। क्या बनाया है, पानी के अंदर आबे रवा,
यानी कि जो बह रहा होता है, पानी चल रहा है, उसके अंदर मछलियां, पौधे भी हैं और दूसरी जानदार चीजें भी हैं। और मछली किसमें तैर रही है? इस पानी के अंदर। हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती। कारीगर किसे कहते हैं? कारीगर का मतलब होता है वो शख्स जो बहुत अच्छी तरह से किसी काम को बड़े अच्छे तरीके से कर सके। तो ये जो हम चीजें देखते हैं अपने इर्द गिर्द पूरी दुनिया में, आप देख रहे हैं, सूरज को देखा हमने, चांद को देखा हमने, पानी में तैरती हुई मछलियों को देखा हमने, पौधों को देखा। ये सब किसने बनाया है? ये सब, इस सब का खालिक कौन है? हमारा। कौन है खालिक हमारा इन सब चीजों का? जी बताइए अनीजा। अल्लाह ताला। जी हाँ, अल्लाह ताला। ठीक है ना। और इससे क्या, और इन सब चीजों को देखकर हमने क्या समझा कि अल्लाह ताला कितना अजीम है और वो कैसी हसीन हसीन चीजें बना सकता है। ठीक है ना। तो इससे क्या हमें कारीगरी टपकती का मतलब है, उस सब चीजों को देखकर हमें ये पता चला कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से, कितनी महारत से ये सारी चीजें बनाई हैं। ये कारखाना तूने कब लाएगा बनाया, ये सबसे अहम है इस मिसरा। कारखाना किसे कहते हैं? जहाँ पे चीजें बनती हैं। ठीक है ना। जहाँ पर चीजें बन रही होती है, क्रिएट हो रही होती है, उसको हम कहते हैं कारखाना। और ये जो हमारा कारखाना है, दुनिया को, शायर ने दुनिया को क्या नाम दिया है? एक कारखाना। ठीक है। और इसके अंदर जो मुख्तलिफ छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें से कब लाएगा, रायगा का क्या मतलब है? जी, रायगा का मतलब होता है बेकार। ठीक है। इसमें कोई चीज भी अल्लाह ताला ने बेकार नहीं बनाई है। ठीक है ना। आप पौधों पे चलता हुआ एक नन्हा सा कीड़ा भी होता है ना, वो भी बेकार नहीं। आप सोचेंगे ये इसका क्या काम है, इसको क्या जरूरत थी पैदा होने की? लेकिन हर चीज का अल्लाह ताला ने एक काम रखा है दुनिया में। कोई चीज अल्लाह ताला ने बेकार नहीं बनाई। रायगा का क्या मतलब है? बेकार, जिसका कोई काम ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी भी चीजें बनाई हैं, हर चीज का हमारे लिए उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। ठीक है। हमारी जिंदगी में उन चीजों की बहुत अहमियत है। ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं जी, इसके बाद इंशाल्लाह अब यहाँ पे हमारा ये नज़म खत्म हो गई। हमने पढ़ ली और हमने जाना कि हम किसे कहते हैं। हम कहते हैं वो नज़म जिसमें किसकी तारीफ हो। हम किसे कहते हैं? अनम्यूट करिए, बोलिए, सब बोले। इसमें अल्लाह ताला की तारीफ हो। अल्लाह ताला की तारीफ हो। एक और चीज भी पढ़ी थी, नात के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। नात में क्या होता है जी? नात किसको कहते हैं? कौन सी नज़म होती है? क्या खास बात होती है नात में? जी जी बोलिए, शाबाश। मिस कैन आई टेल? बिल्कुल जवाब दीजिए बेटा, और उर्दू में बात कीजिए। नात वो होती है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ जिस नज़म में की जाए उसे नात कहते हैं। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर हमको अच्छी तरह समझ लिया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सबने समझा है और बहुत अच्छी हम थी। अच्छा, इसके शायर का नाम क्या है? कौन बताएगा? कहाँ लिखा हुआ है शायर का नाम? शायर किसी को? नीचे मिस यहाँ पे लिखा है। पढ़िए, नाम क्या है बताइए। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेठी। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी। मौलवी नहीं, ठीक है, मौलवी। ठीक है, मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी। और आपका काम पता है क्या है? आज का टास्क, ये असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ एक टास्क है, एक छोटा सा आप लोगों को एक काम दे रही हूँ। आप मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी की और भी नज़मों के कम से कम 3 नज़मों के नाम मुझे बताएंगे अगली क्लास में।
ठीक है, आप इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन थे और कहाँ रहते थे, ये कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, ये सारी बातें आप पढ़ के और इनकी कम से कम 3 नज्मों के नाम, मशहूर नज्मों के नाम मुझे बताएंगे। ठीक है, और ये बात ये मैंने यहाँ पर अपने पास लिख ली, ठीक है ना। और आप भी अपने पास कहाँ लिखेंगे, ये डायरी में। आपके पास डायरी है, और अगर बिलफर्ज नहीं है कोई बात नहीं, आप अपनी कॉपी निकालिए, उसके पीछे का सफा पलटिए, सबसे पीछे, और वहां जाकर लिख लीजिए कि मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेर्थी के बारे में मालूमात हासिल करनी है। ठीक है जनाब। अच्छा, तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, मतलब आप लोगों को बताना चाहती थी, हमारी हफ्ते में कितनी क्लासेस हैं, कौन बताएगा। 4 है, ठीक है ना। जुम्मे को हमारी क्लास नहीं होती। 5 है नहीं, 4 है बेटे। अनुषा आप दोबारा देखिएगा, 4 है। 4 है। 4 है। तो उनमें से 2 क्लासेस जो पहली होंगी पीर और मंगल, उस दिन हम करेंगे तफहीम, ठीक है। और जुमेरात और जुम्मे को हम करेंगे फवाइद। जुमेरात को करेंगे फवाइद, बुध को माफ कीजिएगा, मैं कंफ्यूज हो गई। पीर और मंगल को हम क्या करेंगे, तफहीम। तफहीम का मतलब ये वाली किताब, सवाल जवाब, अल्फाज माने, मुश्किल अल्फाज और जुमले बनाना, तफहीम। और उसके बाद हम क्या करेंगे, बुध को क्या करेंगे, फवाइद का काम करेंगे। फवाइद मतलब ग्रामर का काम। और हम जुमेरात वाले दिन करेंगे मजमून निगारी यानी नसर निगारी का काम, यानी कि खत लिखना, मजमून लिखना। जी बेटे बोलिए। टीचर यू हैव मार्क्ड मी बेटर बिकॉज़ माय कैमरा इज नॉट वर्किंग। अब उर्दू में अगर आप बताएंगे तो मैंने आपसे टीचर, क्या कहा था, जब मैं इंग्लिश में बात करूं, जी जब मैं इंग्लिश में बात करूं इसका मतलब है जब मैं क्लास टीचर हूं, लेकिन जब मैं उर्दू पढ़ा रही हूं तो मैं उर्दू में बात करूंगी, ठीक है ना, और उर्दू में बात सुनूंगी। जी मोहम्मद अहमद। कैमरा बनता है तो इसलिए आपने मेरी प्रेजेंट मार्क की है। बिल्कुल बेटा, आप सबकी प्रेजेंट मार्क हो रही है, जो नजर आ रहे हैं, जिनकी आवाज सुनाई दे रही है किसी वजह से, जिनके कैमरे बंद हैं, ठीक है, लेकिन जिनके बिला वजह बंद है वो भी मुझे पता है, ठीक है ना। तो मैं तो ऐसा करूंगी, पता है मैंने क्या करना है, मैंने आप लोगों के मम्मा को फोन करके पता करना है कि भाई वाह कैमरे क्यों खराब हैं, आप लोग इनके कैमरे ठीक करवा कर दे दो जल्दी से, ठीक है। एक सवाल है आपसे। जी बिल्कुल। अच्छा ओके मैम। जी कि आपने अभी जो होमवर्क दिया है जो शायर के बारे में आपने तफसीलात मालूम की हैं, तो वो किस दिन बच्चे सबमिट कराएं ताकि मैं भी क्लास में आऊं और मैं भी देखना चाहूंगी कि कौन कौन सा बच्चा पूरा अपना होमवर्क करके आया है, उसका नाम नोट करूंगी। जब स्कूल खुलेंगे तो उनको मैं फिर अप्रिसिएशन नोट्स दूंगी। मैं इनको 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ ताकि ये जरा अच्छी तरह से, क्योंकि और भी होमवर्क चल रहा होगा, अगर बिल्कुल कल का कहूंगी तो शायद, और अब फिर या तो हमारी तफहीम की क्लास कल है या फिर अगली पीर है इंशाल्लाह, तो अगली पीर ओवर द वीकेंड के बाद आराम से, ठीक है। अच्छा मिस, आपके बच्चे वो अपना इंडिपेंडेंस डे की तैयारी शुरू कर दी उन्होंने? जी मिस, अभी हमने इनसे बात करी है और मैंने इनको पूरी तरह समझाया है कि इनको क्या क्या एक्टिविटीज हैं, जिनमें से जो ये चाहें वो कर सकते हैं। उनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज बताई है। जी अनीजा जरा आप बताएंगी बेटा, कौन कौन सी एक्टिविटीज हमने बात करी है। अच्छा, कोई और बताना